जय मसीह की। एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी शेफाली वैद्य और नीरज अत्री द्वारा सेंट फ्रांसिस जेवियर पर लगाए गए आरोपों और गोवा में ईसाई धर्म के खिलाफ मौजूदा हिंदुत्ववादी मानसिकता और कुछ झूठ और गलतफहमियों के बारे में खुलासा करेंगे, जो कि इंक्विजिशन के संबंध में वर्षों से है। तो अब हम कुछ वीडियो क्लिप्स को देखेंगे। First of all, I am deeply indebted to Rahul and Srijan Foundation for inviting me to give this talk on Goan Inquisition, because it's a very personal topic for me, because I come from Goa and almost every Goan, be they Hindu or Christians, have had to bear the brunt of Inquisition in some way or the other. You will come to know it as I talk more about it. But it's a very personal story, and it's a personal story for me on many levels. A, because my family had to bear the brunt of it. B, because my family has been personally involved in Goan liberation struggle for the past 3 generations, actually right from my grandfather's generation. And C, because Urka Priolkar, whose book is the most scholarly work on the topic Goa Inquisition, happens to be my aunt's father. So this is a story, this is a book that he had gifted to my grandfather, and this is a story that I have been familiar with since my childhood, you could say. It's been a part of my consciousness while growing up. But having said that, when I started preparing for this talk, it still was the most emotionally exhausting process of my professional life, because it is different when you hear the stories, it is different when you actually go through the book page by page and actually figure out and relive those memories, and it's not fun. They say that who you are today is a result of past decisions, and those decisions are not necessarily made by you. They are made by people sometimes years ago, but you are what you are because of those decisions. I am what I am, Shefali Vaidya, a Hindu woman from Goa, because of a choice made by my ancestor sometimes in 16th century. When the Portuguese came to Goa, and Salsette, which is known as Sahasashti means 66 villages where Hindus are settled. Myth says that Parshuram had settled Hindus from Kashmir into those 66 villages. So that is why that region was called Salsette. So Salsette, Bardes, today what is known as today's Old Goa, and a couple of other islands were what formed the Portuguese territory for the first 200 years almost. Later on, the Portuguese slowly started going further, and they annexed the whole of Goa. But in those days, what the Portuguese called Goa was primarily 2 districts, one of Bardes, one of Salsette, and 3 islands of Chorão, Diwar and Old Goa. So my family used to live in a village called Nagoa. That Nagoa village bordered a village called Verna, where the original Mahalsa temple was, who happens to be my Kuladevata. But the British, sometimes in 1566 or 1 or 2 years after that, they embarked on a major temple destruction drive, where there were edicts from the King of Portugal saying that every single temple in that district should be destroyed. So in 1 year, there are records that they destroyed some 280 temples. Destroyed as in razed it to the ground. Wherever possible, people smuggled, because they knew that this is going to happen, they smuggled the main Vigraha out. Meenakshi ji would know more about this, and they established the Vigraha. They crossed the river, because Portuguese territories were on one side of the river, and on the other side of the river it was either Adil Shah's kingdom, or the kingdom was administered by Saundekar Desai's Hindu rulers on behalf of Adil Shah. So those territories were still safer, the mainland was still safer. So they established the gods and goddesses in that particular district. It's called Ponda Mahal, which is why today if you go to Goa, you will see that most of the big Hindu temples, Mardol, Mangeshi, Kaule, every major Goan temple is within 5 kilometers of each other. Also watch one more clip of Shefali Vaidya from video titled Goa Inquisition, Should the Pope Apologize? With Savior R. Shefali Vaidya and SD, uploaded in Sanjay Dikshit YouTube channel, The Jaipur Dialogues. Whatever little valuables they could
afford, and they left their land, they left everything that whatever ever meant to them in their old village, and they started life with nothing really. And this is not just my story alone. This story of Goa and what happened in Goa is the story that relates to every person in Goa today. It doesn't matter whether the person is Hindu or Catholic. Even Savio's family is affected by this story as much as my family has, which is why Savio today is Savio Rodriguez and I am today Shefali Vaidya. It is a result of the choices that our ancestors made, and every Goan knows about it. But the point is, every Goan Christian or Hindu knows that this thing happened, but very few people know about the sheer scale of the brutality and what happened. Very few Goans today know that in 1 year, 300 temples, over 300 temples in Bardez district were destroyed, and in the next year, over 300 temples in the Salsette district were destroyed in just 1 year. You cannot imagine that scale of destruction. You cannot imagine the kind of torture and pain that the Goan people went to. And some of them succumbed to the pressure, some of them converted, people converted because of various reasons. And I am not going to judge them for what they did 450 years ago. But the point is, even after they got converted, even after they become officially Christian, their ordeal was not over. The Hindus' ordeal, of course, continued. They were forced to leave Goa. They were forced to seek refuge in areas that were not under Portuguese rule at that point of time. A lot of people, hundreds of thousands of them, moved to Mangalore belt and coastal Karnataka. A lot of them also moved to coastal Kerala. That is why you find the community of Konkani speaking people all along the coast, actually, all the way from the coast of Maharashtra to Kerala. But the Christians who got converted to Christianity also were not spared the torture. Francis Xavier, when he came to Goa and when he started his proselytizing, he realized that the rate of conversion was very slow. And secondly, even when people got converted to Christianity, they were not really following the religion the way he thought it was meant to be followed. He felt that people relapsed back to their older religion. They continued with the same cultural practices, same religious practices. So he actually wrote to the King of Portugal, and this is published in his own correspondence, where he has officially written to the King of Portugal and said that the court of inquisition should be established in Goa to punish the Christians who have converted to Christianity but who continue to practice their religion in secret. It is true that the court of inquisition was established in Goa after Francis Xavier died, but having said that, it doesn't absolve him of the blame that he was the one who first wrote the letter to the King of Portugal asking for a court of inquisition to be established in Goa. And nobody can deny that. And I can quote instances from Xavier's correspondence with page numbers and everything. तो प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप हिंदुत्व संघी कट्टरपंथी इन नफरत करने वालों की साजिश को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। शेफाली वैद और इन नफरत फैलाने वाले चैनलों ने नकली कथा का प्रसार किया है कि गोवा में कैथोलिक इंक्विजिशन भारत में कट्टरता के क्रूर प्रकारों में से एक है, जिसे अक्सर किसी भी इस्लामिक धर्म त्याग से भी बदतर माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ तथ्यों को सामने लाएंगे और इन नफरत फैलाने वालों को बेनकाब करेंगे, जो कि आर्टिकल 51A के तहत भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं। भारतीय संविधान के खिलाफ जाने वाले असली राष्ट्र विरोधी हैं और राष्ट्र के लिए वास्तविक खतरा वही है। पहले आइए समझते हैं कि इंक्विजिशन क्या है। शब्द इंक्विजिशन लैटिन वर्ड इंक्विजिशो से लिया गया है, जिसका की अर्थ होता है पूछताछ करना। इंग्लिश डिक्शनरी में इसका अर्थ है, पहला, गहराई से खोज या खोज करने का कार्य, जांच पड़ताल। दूसरा, एक जूरी द्वारा आयोजित एक आधिकारिक जांच। अगर हम इसे वर्तमान संदर्भ में देखें तो 13वीं शताब्दी में चर्च के भीतर विधर्मियों की खोज के लिए स्थापित रोमन कैथोलिक चर्च की न्यायिक संस्था को दिया गया यह नाम है। और इसी तरह गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान होने वाला इंक्विजिशन कैथोलिक चर्च यानी केवल ईसाई पर लागू होता है। हिंदू या मुसलमान इस न्यायिक दायरे में नहीं आते हैं। फिर जो लोग ईसाई बन गए
क्या उन्हें ईसाई बनने के लिए मजबूर किया गया? तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें यह पता होना चाहिए कि क्या बाइबल ज़बरदस्ती धर्मांतरण की अनुमति देती है या नहीं। इसे जानने के लिए आइए हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। मत्ती 10:14। और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मरकुस 6:11। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। लूका 9:5। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करेगा, उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। लूका 10:12। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। प्रेरितों के काम 13:51। तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियम को गए। तो प्रिय दर्शकों, बाइबल की इन आयतों से आप समझ गए होंगे कि जो लोग सुसमाचार ग्रहण नहीं करते, उनके खिलाफ बाइबल बल का प्रयोग करने के लिए नहीं कहती। यदि गोवा के लोग ईसाई बनने के लिए मजबूर किए गए थे, तो पुर्तगाली सरकार में काम करने वाले हिंदू ब्राह्मण हिंदू कैसे बने हुए थे? प्रिय दर्शकों, अब हम गोवा इंक्विजिशन को डिटेल में देखेंगे, जिस पर बहुत सी गलतफहमियां हैं। आइए एक परिचित किताब द गोवा इंक्विजिशन से तथ्यों का खुलासा करते हैं, जिसका अपनी वीडियो में शेफाली वैद ने भी उल्लेख किया है। वह दावा करती हैं कि उनके पूर्वज गोवा इंक्विजिशन और यह पुस्तक द गोवा इंक्विजिशन व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़ी है। प्रिय दर्शकों, इस पुस्तक के कुछ ही पेजेस को पढ़ के हम उनके झूठे आरोपों के पीछे की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। हम कुछ बिंदुओं पर गौर करेंगे। क्या पुर्तगालियों के गोवा आने से पहले ईसाई धर्म अस्तित्व में था? ए.के. प्रायोलकर द्वारा उनकी पुस्तक में लिखा स्पेनिश इंक्विजिशन क्या वास्तव में हुआ था? जैसा कि शेफाली वैद ने दंड और अत्याचार के बारे में उल्लेख किया है, क्या वह वास्तव में इंक्विजिशन के नाम पर हुआ? क्यों गोवा के लोग आज भी सेंट फ्रांसिस जेवियर की प्रशंसा करते हैं? तो प्रिय दर्शकों, ये नफरत फैलाने वाले गलत बयान दे रहे हैं कि पुर्तगाली के आने के बाद ही ईसाई धर्म ने गोवा के लिए अपना रास्ता बनाया। यह एक गलत दावा है। ईसाई धर्म पहले से ही गोवा में मौजूद है और ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं कि पुर्तगालियों के आने से पहले भी गोवा में ईसाई धर्म मौजूद था और यह दावा इन सबूतों के आधार पर किया गया है। नवंबर 1510 में तिसवाड़ी की विजय के कुछ दिनों बाद अफोंसो डी अल्बुकर्क द्वारा ओल्ड गोवा में एक घर की दीवार में पाया जाने वाला धातु का क्रॉस 1391 में हिंदू राजा द्वारा पगोड़ा को दिया एक मेटालिक प्लेट जो कि त्रिज्ञ परमेश्वर और दिव्य अवतार को दर्शाता है, और बाद में 1532 में पुराने गोवा शहर के दरबार में वह आगे बढ़ा। इब्न बतूता एक यात्री की गवाही है कि 1342 एडी में उसने अक्षनी नदी के तट पर ईसाई बस्तियों का पता लगाया और उस युग के दौरान यह मुस्लिम राजाओं के शासन के अधीन था। और जूरी नदी के तट पर पूर्व जे कॉस्मे कोस्टा द्वारा पाए गए सेंट थॉमस क्रॉसेस के पहलवी शिलालेख। तो प्रिय दर्शकों, यह स्पष्ट है कि पुर्तगाली आने से पहले ईसाई धर्म गोवा में पहले से मौजूद था। शेफाली वैद और अन्य नफरत फैलाने वाले ए.के. प्रायोलकर द्वारा लिखित द गोवा इंक्विजिशन की पक्षतापूर्ण व्याख्या के आधार पर गलत जानकारी फैला रहे हैं। और कई अन्य पुस्तकें हैं जो बाद में इस पुस्तक के दावों के विरोधाभासी पाई गईं। विक्टर फराओ ने अपनी पुस्तक बीइंग अ गोवन क्रिश्चियन द पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी रिफ्ट एंड सिंथेसिस में लिखा है कि द गोवा इंक्विजिशन एक अतिरंजित पुस्तक है, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के लिखी हुई पुस्तक है जो अपनी जातियों को निर्मित कहानियों से समृद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि एक वास्तविक गोवन वास्तविक इतिहास को जानता होगा, और आगे यह भी जोड़ते हैं कि जब पुर्तगाली वहां पहुंचे तो केवल 2 से 3% हिंदू थे और वे एक मुस्लिम राजा के शासन में थे। अकादमिक इतिहासकारों का कहना है
कि गोवा में कभी भी इंक्विजिशन साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि तथ्यों को दबाना और ईसाई धर्म को गलत चित्रित करना अस्वीकार्य है। गोवा इंक्विजिशन पे कई और किताबें हैं, जैसे एज ऑफ फ्रेंजी, कन्वर्जन्स एंड सिटीजनरी, अनदर गोवा एंड द लास्ट प्रभु एक्सेट्रा। हर किताब का अलग नज़रिया होता है। या तो लेखकों को एक जैसी जानकारी देनी चाहिए या सभी पुस्तकों की जानकारी पूरी सच्चाई के साथ एक ही क्षमता तक ले जानी चाहिए, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। गोवा इंक्विजिशन पर हर दूसरी पुस्तक में अलग अलग विचारधारा, अलग अलग कहानियाँ और अलग अलग कार्य प्रणाली है। इसके अलावा यहाँ याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी पुस्तकें 19वीं सदी और 20वीं सदी की हैं, मतलब 16वीं सदी में हुई बातें 2 शताब्दियों के बाद लिखी जा रही हैं। और जो चित्र हमें इंटरनेट पर देखने को मिलते हैं वे आमतौर पर नकली होते हैं। सोशल मीडिया के समर्थन का उपयोग करते हुए ये नफरत फैलाने वाले हिंदुत्व ईसाई धर्म के नाम को बर्बाद और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, आइए हम एक बार फिर से इस इंक्विजिशन के मामले को खोलते हैं। गोवा इंक्विजिशन पर विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग तर्क हैं। A.K. प्रायोलकर द्वारा द गोवा इंक्विजिशन नामक पुस्तक में गोवा इंक्विजिशन के लिए नींव बनाने के लिए अध्याय 1 में स्पेनिश इंक्विजिशन के साथ शुरू किया गया है और पेज नंबर 3 में वे लिखते हैं, इंक्विजिशन को दमन और दंड के लिए एक न्यायाधिकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह आधिकारिक तौर पर पवित्र कार्यालय है। तो आइए हम सबसे पहले स्पेनिश इंक्विजिशन को डिबंक करते हैं। हर इतिहासकार की अलग अलग राय होती है कि यह कब, कहाँ पे और इन इंक्विजिशन कैंप को किसने शुरू किया। क्या कैथलिकों ने स्पेन में कई निर्दोष लोगों को मार डाला? आइए इस बारे में अधिक जानने के लिए एक इतिहासकारक हेलन रोवलिंग्स द्वारा लिखी गई पुस्तक द स्पेनिश इंक्विजिशन पर हम अच्छी तरह से शोध करते हैं। वे अपनी किताब में लिखती हैं, 1972 में हेनेनसन और कंट्रीरस ने परीक्षण रिकॉर्ड के लगभग 50,000 सारांशों का मात्रात्मक अध्ययन किया। 1519 से 1700 की अवधि में स्पेनिश न्यायिक जांच के 21 क्षेत्रीय न्यायाधिकरणों के एक स्टैटिस्टिकल डेटा बैंक का उत्पादन करने के लिए किए गए अपराधों को उनके प्रकारों के अनुसार वर्गीकृत किया गया। सबूतों के उनके व्यवस्थित विश्लेषण ने इसके इतिहास पर महत्वपूर्ण नए दृष्टिकोणों की संख्या का खुलासा किया है। सबसे पहला इंक्विजिशन खून के प्यासे और दमनकारी वैचारिक नियंत्रण के साधन के रूप में कहीं भी नहीं था, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। 1480 के दशक का प्रलय कम समय तक जीवित रहा था। इसके अधिकांश सक्रिय इतिहास के लिए निष्पादन दर प्रति वर्ष औसतन 5 लोगों का 2% रहा। विशेष रूप से अपने अस्तित्व के शुरुआती वर्ष के दौरान यातना और मृत्यु दंड शायद ही कभी लागू किया गया था। प्रिय दर्शकों, प्रसिद्ध इतिहासकारक ब्रियन ए पैवलॉक ने अपनी पुस्तक विच हंट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड में लिखा है, कम से कम इतिहास में यातना के बारे में नियम और कानून थे। विभिन्न कानूनी पुस्तिकाएं और कैनन और धर्मनिरपेक्ष वकीलों द्वारा यातना मैनुअल में एक रूपता और रचनात्मकता दोनों की पेशकश की गई है। प्रश्न को मानवीकृत किया जाना चाहिए और अभियुक्तों को नहीं छोड़ना चाहिए। न्यायिक और सचिवों के रूप में इस तरह के सत्रों को देखना और रिकॉर्ड भी करना था। गर्भवती महिलाएं, बच्चे और रईसों जैसे लोगों को आमतौर पर छूट दी गई थी। हर अवसर अभियुक्तों को कबूल करने के लिए दिया जाता था और इस तरह यातना से बचा जाता था। एक अन्य इतिहासकार हेनरी कामेन ने अपनी पुस्तक द स्पेनिश इंक्विजिशन और हिस्टोरिकल रिवीजन में लिखा है, जैसे ही इस विषय पर अधिक गंभीर शोध प्रकाशित होने लगे, विद्वानों में खूनी इंक्विजिशन की किंवदंती गायब होने लगी। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के गॉथिक उपन्यासों के बाद से उन लोगों के बीच इसका जीवित रहना जारी रहा जिन्होंने इसे अपना जीवन बनाया, जैसे कि लोकप्रिय कल्पना के लेखक। सबसे सफल और काल्पनिक के करीब स्पेनिश इंक्विजिशन पर प्रकाशित किए गए कार्यों में वह 3 वॉल्यूम्स थे जो कि 1950 के दशक के अंत में और 1960 के शुरुआत में प्रकाशित हुए थे।
जिसे कि ब्रिटिश लेखक एलेनोर हिबेट ने लिखा, जो कि सीडोनिम जीन प्लेटी के तहत लिख रहे थे, और अन्य लोकप्रिय लेखकों ने इसे इसी तरह जारी रखा। तो प्रिय दर्शकों, इस बात से यह स्पष्ट है कि इन लेखकों ने इस विषय पर किताबें लिखकर अपना जीवन व्यापन किया। और नॉर्थ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने अपने जर्नल लेख में लिखा था कि प्रोटेस्टेंट क्रिटिक्स ने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच संघर्ष को बढ़ाने के लिए इस इंक्विजिशन मेथड का इस्तेमाल किया। अब आइए अगले विषय पर बढ़ते हैं। उन इंक्विजिशन चित्रों और यातना उपकरणों के बारे में जो ईसाई धर्म पर कठोरता को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर विधर्मी और हिंदुत्व हेटमॉन्गर्स पोस्ट करते हैं, वे कितने सच्चे हैं। A.K. प्रायोलकर ने अपनी पुस्तक द गोवा इंक्विजिशन में पेज नंबर 152 और 153 के बीच कुछ तस्वीरों को छापा ताकि इस्तेमाल की गई यातनाओं का आभासी एहसास दिया जा सके। शेफाली वैद ने अपने ट्विटर हैंडल में संगम टॉक्स द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में ऐसे यातना भरे उपकरणों की बात की है। Twitter handle. So what happened in the Palace of Inquisitions? These things. These are various kinds of tortures. Next please. Torture was used by the office to extract confessions. Next please. Horrible tortures like pole or torture of police, where the victim would be suspended mid-air with his legs stretched on both sides and weights attached. The weights would be increased till the victim couldn't bear it anymore and confessed. If you torture somebody like that, it doesn't matter what that person has done or not done. I mean, you can. I think it was Major Gaurav Arya who had said that, give a person to me for 2 hours and I will make him confess that he is a mango tree. It's valid there also. Next please. The terror and the torture of Potro. It involved placing the victim on a slanted board with head lower than the body. An iron band around the throat kept the head in place. Hands and feet were tied and iron prongs would force the mouth open. And water would be poured into the person's mouth and nose continuously to strangle and suffocate the person. Next please. Peter Konieczny, a famous historian who had पीटर कनिएज्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार जिन्होंने मध्यकालीन युग के यातना उपकरणों पर शोध किया था, वह इस प्रकार कहते हैं, जब बहुत से लोग मध्य युग के बारे में सोचते हैं तो वे इसे एक ऐसे समय के रूप में देखते हैं जब लोगों को शैतानी उपकरणों के एक विस्तृत संग्रह द्वारा प्रताड़ित किया गया था, चाहे वह पियर ऑफ एंग्विश हो या फिर आयरन मेडन हो। इन यातना उपकरणों को मध्य युगीन के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि वास्तविकता यह है कि इनमें से कई उपकरण मध्य युग में कभी मौजूद ही नहीं थे। Spencer Alexander, a famous researcher, writes the same regarding this. इसी प्रकार लिखते हैं, We have all heard of so-called medieval torture devices. के बारे में सुन You चुके can हैं find tons of clickbaity articles online and videos on YouTube वीडियोस को देख सकते and हैं। so forth talking about the और इसी most विषय पर gruesome बस of these इंडिया की alleged तरफ से devices. YouTube पर वीडियो है। For 5 instance, most here gruesome is a medieval YouTube torture video devices. from BuzzFeed मतलब titled सबसे 5 भीषण of the most मध्ययुगीन gruesome यातना medieval उपकरण। torture devices. और इसकी List the लिस्ट को Scrolls उन्होंने Bridle, दिखाया है, the Rack, Scrolls the Bridle, Iron the Maiden, Rack, the the Iron Pierce of Maiden, Anguish, the Pier of Anguish the Brazen और Bull. Brazen Bull।
He took उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ये सभी उपकरण मध्ययुगीन काल के भी नहीं हैं। उत्तर पश्चिमी विश्वविद्यालय के पीएचडी डॉक्टर जेनेवल कार्टन कहते हैं कि लोग ऐतिहासिक यातना के बारे में मानते हैं जो कि सच नहीं है। द आयरन मेडन, पियर ऑफ एंग्विश, टॉर्चर म्यूजियम ने उल्लासपूर्वक इन भयानक उपकरणों को प्रदर्शित किया है और दावा करते हैं कि वे मध्यकालीन युग के दौरान हजारों पर उपयोग किए गए थे। लेकिन यह पता चलता है कि ऐतिहासिक यातना के बारे में हमारे अधिकांश विश्वास सच नहीं हैं। भीषण यातना उपकरणों के बारे में लगभग हर लेख में यातना के ऐसे रूप शामिल हैं जो कभी अस्तित्व में नहीं आए। उदाहरण के लिए आयरन मेडन को 18वीं शताब्दी में आविष्कार किया गया था ताकि मध्यकालीन युग को और भी ज़्यादा असभ्य बता सकें। साहित्य में बांस की यातना के बारे में कहानियां हैं, लेकिन इसका अब तक कोई भी प्रमाण नहीं है कि यह कभी हुआ भी था या नहीं। और पियर ऑफ एंग्विश छिद्रों को चीरने के लिए नहीं किया गया होगा, वास्तव में यह एक सॉक स्ट्रेचर हो सकता है। इतिहासकार हेलेन मेरी कैरोल मध्ययुगीन न्याय प्रणाली के सामान्य दृष्टिकोण को क्रूर बताती हैं। हम जानेंगे कि पहले यातना के बारे में इतनी गलत सूचना क्यों है। यह वास्तविक रूप से भयभीत और रोमांचित है क्योंकि कई फिल्मों और पुस्तकों और टीवी कार्यक्रमों में यातना दिखाई जाती है। और दूसरा, क्योंकि अत्याचार के बारे में कहानियाँ पहले से ही हमारे अतीत के बारे में जो विश्वास है उसे मजबूत करती हैं। हम मध्ययुगीन युग को एक क्रूर समय के रूप में मानते हैं, इसलिए यह विश्वास करना आसान है कि आयरन मेडन जैसे उपकरण बहुत वास्तविक थे। पर जब हम ऐतिहासिक जांच के अत्याचार के बारे में मिथकों को रखते हैं तो इनमें से पता चलता है कि कई सच झूठ हैं। दिनेश डिसूजा की पुस्तक ईसाई धर्म के बारे में क्या महान है में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इनक्विजिशन कभी नहीं हुआ था और चीज़ों को अतिशयोक्ति के पूर्ण अर्थ को बदलने में अतिरंजित किया गया है। वे नास्तिक पर भी दोष डालते हैं। दिनेश डिसूजा के अनुसार उनकी पुस्तक में कहा गया है कि समकालीन इतिहासकारों ने अब यह स्थापित किया है कि इनक्विजिशन की भयावह छवियों को मोटे तौर पर स्पेन के राजनीतिक मुद्दों द्वारा पहले एक मिथक माना जाता था, मुख्यतः अंग्रेजी लेखक जिन्होंने उस घटना और बाद में हमारी अमेरिकी समझ को आकार दिया। हेनरी कामेन की पुस्तक द स्पेनिश इंक्विजिशन को अ हिस्टोरिकल रिवीजन भी कहा जाता है। यह एक लंबी पुस्तक है कि कामेन के पास रिवीजन करने के लिए बहुत कुछ है। उनके अध्यायों में से एक है इंक्विजिशन का आविष्कार, जिसका अर्थ है कि इंक्विजिशन के आधुनिक स्टीरियोटाइप का ज़्यादातर हिस्सा अनिवार्य रूप से बनाया गया है। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि स्पेनिश इंक्विजिशन और पुर्तगाली इंक्विजिशन दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन इंक्विजिशन राजनीतिक पुनरुत्थान द्वारा किया गया प्रचार है, साथ ही साथ नास्तिकों द्वारा एक बड़े प्रचार के रूप में घोषित किया जाता है। हम उन लोगों से अनुरोध करते हैं जिन्होंने भारत में एक बार फिर से अपने साक्ष्य को सत्यापित करने और सत्यापित तथ्यों को सामने लाने के लिए प्रचार शुरू किया था। तो प्रिय दर्शकों, हमने देखा कि ये स्पेनिश इंक्विजिशन फर्जी है जो कि ए.के. प्रायोलकर ने द गोवा इंक्विजिशन के लिए नींव बनाने के लिए अपने पहले अध्याय में इस्तेमाल किया। और हमने यह भी देखा कि यातना यंत्रों का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यातना यंत्र उस समय बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते थे। अब आइए उस पुस्तक के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर करें जिसका शेफाली वैद ने ए.के. प्रायोलकर की पुस्तक द गोवा इंक्विजिशन से उल्लेख किया है। इस लेखक ने गोवा इंक्विजिशन पर शोध किया था और वे लिखते हैं, अपने अस्तित्व की शुरुआती अवधि के दौरान इंक्विजिशन के भयानक कृत्यों ने लोगों की यादों में इतना गहरा आतंक पैदा कर दिया था कि किसी को भी उस जगह का नाम बताने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इसे एक रहस्यमयी नाम दिया गया, ऑर्लेम गोर, मतलब बड़ा घर। दूसरा, इंक्विजिशन और अन्य प्रमाणिक दस्तावेजी सामग्री के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। हमारे इतिहास में इस कमी को भरने की समस्या के लिए एक सदी पहले गोवा की यात्रा के दौरान मैंने इस उद्देश्य के लिए बुनियादी सामग्री के बारे में कुछ पूछताछ की। मैंने गोवा में उपलब्ध सभी मुद्रित सामग्री की जांच की और किसी भी पांडुलिपियों के दस्तावेजों को देखने के लिए आगे बढ़ा।
एक प्रामाणिक खाते के लिए मुख्य स्रोत स्पष्ट रूप से पूछताछ की कार्यवाही का रिकॉर्ड होगा। मेरी पूछताछ के जवाब में गोवा सरकार के ऐतिहासिक अभिलेखागार के निदेशक श्री पी पिसिलिनियर ने मुझे सूचित किया कि ये रिकॉर्ड गोवा में उपलब्ध नहीं है। और पेज नंबर 28 और 29 में ए.के. प्रायोलकर लिखते हैं कि जब तक भारतीय धर्मगुरु और मूर ईसाई नहीं बन जाते तब तक इंक्विजिशन के अधीन नहीं है। और फिर भी यूरोप के अन्य ईसाइयों की तरह या पुर्तगालियों के नए ईसाइयों की तरह इनके साथ सख्ती पेश नहीं आती। लेकिन यदि किसी भारतीय दल या गोवा के अन्य निवासियों ने किसी को मना किया हो जो कि ईसाई बनना चाहता हो और उसके खिलाफ यह साबित किया गया हो तो वह इंक्विजिशन द्वारा दंडित किया जाएगा, जैसा कि अक्सर होता था। वे भारतीयों के साथ इस तरह से सख्ती से पेश आते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि वे पुराने ईसाइयों के रूप में विश्वास में इतने दृढ़ नहीं हो सकते। इससे बाकी लोगों को भटकने से रोका जा सकता है। इसी कारण से भी वे उन्हें अपनी कुछ अन्य जाति और मुस्लिम अंधविश्वासों को बनाए रखने की अनुमति देते हैं, जैसे कि पोर्क या बीफ नहीं खाना, शराब नहीं पीना और अपनी पूर्व पोशाक और गहनों को रखना, जो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी है जो कि ईसाई बन गए थे। और पेज नंबर 53 में ए.के. प्रायोलकर लिखते हैं, सबसे पहले यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धमकी और आतंक के साथ बलपूर्वक हमारे विश्वास और बपतिस्मा में लाना वैध नहीं है, क्योंकि कोई भी विश्वास से मसीह के पास नहीं आता है जब तक कि उसे लाया ना जाए अपने दिव्य पिता प्यार और अनुग्रह के साथ। जिस तरह एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से शैतान के प्रलोभनों के आगे झुक जाता है और नष्ट हो जाता है, उसी तरह अगर वह परमेश्वर की पुकार और कृपा का जवाब देता है तो वह खुद को बचाता है। अविश्वासी को हमारे जीवन के उदाहरण से सच्चे विश्वास में लाया जाना चाहिए और हमारी व्यवस्था की सच्चाई का प्रचार करना चाहिए, ताकि इन बातों की पहचान के द्वारा वे अपने झूठ को छोड़ दें और मसीह में प्राप्त हों, जो कि मार्ग, सत्य और जीवन है। जो अविश्वासियों को लाना चाहते हैं सच्चे विश्वास के लिए, वे नम्रता, अच्छाई पैदा करने की कोशिश करें, ताकि वे न केवल अपने उपदेशों के द्वारा बल्कि दया, शिष्टाचार और सेवा के द्वारा भी लोगों को मसीह के लिए जीत सकें। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए ए.के. प्रायोलकर लिखते हैं कि गोवा में होने वाली इंक्विजिशन को साबित करने के लिए कोई उचित प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है, और यह भी लिखते हैं कि भारतीय धर्मगुरु और जो भी धर्म के मूल हैं वे जिज्ञासा के अधीन नहीं हैं और धर्मांतरण, खतरे और आतंक के साथ नहीं है। अब प्रिय दर्शकों, आइए सेंट ज़ेवियर द्वारा लिखे गए पत्र का मूल्यांकन करें। पुर्तगाली एडमिरल अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को बीजापुर और गोवा के मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल शाह ने भगा दिया था। हालांकि 3 महीने बाद उन्होंने फिर से एक बड़ी ताकत के साथ हमला किया, एक स्थानीय हिंदू सरकार थिम्मैया की मदद से। जैसा कि गोवा के तथाकथित हिंदू मूल निवासियों को आदिल शाह शासन में कुछ समस्याएं दर्ज थी, उन्होंने उनके खिलाफ लड़ने के लिए मदद के लिए होनावर के टिमोजा से संपर्क किया। हालांकि ये जानते हुए कि उनके पास आदिल शाह की तुलना में एक छोटी सेना थी, टिमोजा ने उन्हें सलाह दी कि वे मदद के लिए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क से संपर्क करें। बदले में अल्फोंसो ने उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए कहा और अंत में टिमोजा और उनका परिवार ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया। यहाँ यह जानकर बहुत दुख होता है कि मुस्लिम नियमों से दुश्मनी रखने वाले हिंदुओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की, चाहे पुर्तगालियों या अंग्रेजों ने जब भारत पर आक्रमण किया। और अब इन हिंदुत्व कट्टरपंथियों का, जिन्होंने इन आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त कराने में कोई योगदान नहीं दिया, ईसाइयों और मुसलमानों पर चिल्लाते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क 1510 में गोवा आए थे। फ्रांसिस ज़ेवियर ने अपना अधिकतर समय नए कन्वर्ट्स के कैटेकिज्म में बिताया। उन्होंने महसूस किया था कि उन्हें ठीक से निर्देश नहीं दिया गया था, इसलिए वे अपनी पुरानी धार्मिक प्रथाओं में वापस चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि पुर्तगाल के राजा जॉन III को गोवा में इंक्विजिशन का प्रयास करना चाहिए। सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर ने न्यू कन्वर्ट्स के कैटेकिज्म में बहुत समय बिताया और उन लोगों को उपदेश दिया जो अभी तक ईसाई नहीं थे।
चीन के रास्ते में सनकी द्वीप पर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कब्र में चूने के साथ उनको दफनाया गया, फिर भी उनका शरीर संरक्षित था बल्कि असंयमित रहा। सेंट ज़ेवियर की मृत्यु के 8 साल बाद 1560 में गोवा में इंक्विजिशन लागू किया गया। इंक्विजिशन उन नए कन्वर्टेड ईसाइयों के लिए था जो अपनी पुरानी धार्मिक प्रथाओं के कार्य में वापस चले जाते थे, और इंक्विजिशन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं था जो ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं हुए थे। यह आरोप लगाया गया है कि इंक्विजिशन के दौरान लगभग 16,000 लोगों का निष्पादन किया गया था, लेकिन संभवतः इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि 1820 में इंक्विजिशन के कार्यालय को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। जो भी रिकॉर्ड हैं उनमें पता लगता है कि लगभग 57 को निष्पादित किया गया और 67 की मृत्यु के बाद उनके पुतलों को जलाया गया। यह सच है कि सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर ने सुझाव दिया था कि किंग जॉन III को 16 मई 1546 को दिए गए पत्र में इंक्विजिशन को स्थापित किया जाएगा। हालांकि यह दिलचस्प है कि उनके पत्रों को अन्य प्रसिद्ध पुस्तकों में प्रकाशित नहीं किया गया, लेकिन केवल सिल्वा रेगो के डॉक्यूमेंट्स 1947 to 1958 के लेखन में दिखाई दिया गया है। मसीहियों के लिए दूसरी आवश्यकता यह है कि आपका ऐश्वर्य पवित्र इंक्विजिशन को स्थापित करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो यहूदी कानून के अनुसार और मोहम्मदन संप्रदाय के अनुसार रहते हैं, परमेश्वर या दुनिया की शर्म के बिना। इसलिए पवित्र इंक्विजिशन और कई प्रचारकों की आवश्यकता है। पत्र का मूल्यांकन। सबसे पहले वह उल्लेख करता है कि नए धर्मांतरित यहूदी और मोहम्मदन के बीच में रह रहे थे और वे उन धार्मिक कानूनों में वापस जा रहे थे जिनसे वे पूर्व में जुड़े थे। वह मूर्ति पूजकों या हिंदू या पेगन प्रथाओं का उल्लेख नहीं करता है। दूसरा, उनका किसी भी पत्र 16 मई 1545 से पहले और उसके बाद गोवा में इंक्विजिशन की आवश्यकता का उल्लेख नहीं करता। उन्होंने 20 जनवरी 1545 को कोचीन भारत से किंग जॉन III को एक पत्र लिखा था, लेकिन इसमें भी इंक्विजिशन का कोई उल्लेख नहीं था। एक अन्य पत्र 20 जनवरी 1548 में लिखा था, उसमें भी इंक्विजिशन का उल्लेख नहीं था। एक अगला पत्र 28 जनवरी 1549 में लिखा था, जिसमें भी इंक्विजिशन का उल्लेख नहीं था। एक और पत्र 23 जून 1549 में मलक्का से किंग जॉन III को लिखा था और 10 अप्रैल 1552 को गोवा से किंग जॉन III को एक पत्र था। इन सभी पत्रों में, जो मुख्य भूमि कोचिन इंडिया से लिखे गए थे, इंक्विजिशन का कोई भी उल्लेख नहीं है। उन्होंने अम्बोयना से केवल एक पत्र लिखा था और उन्होंने केवल एक बार अम्बोयना का दौरा किया था, जबकि वे कई बार कोचिन गए थे और अक्सर गोवा में थे। गोवा और कोचीन से एक से अधिक पत्र हैं, उनमें से कोई भी इंक्विजिशन की आवश्यकता का उल्लेख नहीं करता। जिस पत्र में उन्होंने इंक्विजिशन का उल्लेख किया है वह वास्तव में अम्बोयना मलकौस से लिखा गया था और उन्होंने उस जगह को भारत कहा। तो वह कौन सी जगह है? अम्बोयना मलाकाउस इंडोनेशिया के मालुकू द्वीप जिलों का आधुनिक अम्बोना द्वीप है। निसंदेह पहले इस स्थान पर बड़ा यहूदी और मुस्लिम आबादी थी। जैसा कि गोवा को पूर्व की पुर्तगाली उपनिवेशों की राजधानी माना जाता था और अन्य देशों में भी हर कॉलोनी को बस भारत कहा जाता था, जैसा कि इस मामले में इंडोनेशिया को भारतीय द्वीप समूह कहा जाता था। इसलिए यह एक सवाल और संदेह पैदा करता है, क्या सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर ने भारत में इंक्विजिशन निशान का अनुरोध किया था, वह भी गोवा में, या वह विशेष रूप से अम्बोयना मलकौस का मतलब था और किसी अन्य क्षेत्र का नहीं? अपने अन्य पत्रों में उन्होंने विशेष रूप से गोवा का उल्लेख किया है, तो उन्होंने इस पत्र में ऐसा क्यों नहीं किया? तो प्रिय दर्शकों, हालांकि A.K. प्रायोलकर को गोवा इंक्विजिशन के लिए कोई प्रामाणिक सबूत नहीं मिला, वह पूरी तरह से डेलन के काम पर आधारित हैं, लेकिन कई इतिहासकारों ने साबित किया है कि डेलन का काम बिल्कुल मनगढ़ंत है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ हमारा सवाल यह है कि इन बिंदुओं पर सार्वजनिक रूप से चर्चा क्यों नहीं की जाती है और केवल उनके सांप्रदायिक राजनीतिक एजेंडे पर ध्यान देने वाले आख्यानों को ही क्यों चुना जाता है और जनता के सामने पेश किया जाता है? केवल उनको सांप्रदायिक राजनीतिक एजेंडा चलाना है।
यह साबित करने के लिए हमारे पास एक और बिंदु है। जब हम देखते हैं A.K. प्रायोलकर के काम को छापने और प्रकाशित करने के लिए प्रमुख फंडर कौन है, तो आश्चर्यजनक रूप से हम बॉम्बे के ब्राह्मणों को देखते हैं। फिर हमने यह शोध करने की कोशिश की कि इन ब्राह्मणों को सेंट जेवियर के नाम को खराब करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमें सेंट जेवियर के पत्रों से पता चलता है कि वे जाति व्यवस्था के नाम पर ब्राह्मणों द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ थे। फ्रांसिस जेवियर भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ वास्तव में था, जिसके द्वारा ब्राह्मणों ने निचली जातियों का शोषण किया। हम इसे हेनरी जेम्स के द्वारा लिखित पुस्तक द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर के पेज 151 से 158 में देख सकते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पत्र स्पष्ट रूप से हमें दिखाएंगे कि वे वास्तव में मूल भारतीयों के खिलाफ न्याय के लिए लड़े थे, जिन्हें ब्राह्मणों ने निष्कासित कर दिया था। उनके एक पत्र में सेंट फ्रांसिस जेवियर इस तरह लिखते हैं, हमारे पास इन पुरुषों के बीच एक वर्ग ऐसा है जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। वे देवताओं की पूजा करते हैं और धर्म के अंधविश्वासी रीति रिवाज और मूर्तियों की देखभाल करते हैं। वे बहुत ही ज़्यादा विकृत और दुष्ट हैं और मैं हमेशा उन पर पवित्र दाऊद के शब्दों को लागू करता हूँ, हे परमेश्वर, मुझे एक अपवित्र, दुष्ट और चालाक इंसान से छुटकारा दे। वे बहुत ही ज़्यादा झूठे और धोखेबाज हैं। उनका पूरा अध्ययन ये है कि किस प्रकार अधिकांश लोगों की सादगी और अज्ञानता को धोखा दिया जा सके। वे सार्वजनिक रूप से यह बताते हैं कि देवताओं को मंदिरों में चढ़ाने के लिए कुछ प्रसाद चाहिए, लेकिन प्रसाद केवल वह चीज़ें हैं जो ब्राह्मण स्वयं अपने लिए, अपनी पत्नियों के लिए और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। वे गरीब लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके देवता इंसानों की तरह खाते पीते हैं। और कुछ भक्त लोग ऐसे पाए जाते हैं जो वास्तव में रात के खाने से पहले और दिन में 2 बार मूर्ति को चढ़ावा चढ़ाते हैं और एक निश्चित राशि का भोजन करते हैं। ब्राह्मण ढोल की आवाज़ में स्वादिष्ट भोजन करते हैं और अज्ञानियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि देवता भोज कर रहे हैं। और जब उन्हें किसी आपूर्ति की आवश्यकता होती है तो वे लोगों को बताते हैं कि देवता नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें मांगी लोगों ने उन्हें नहीं भेजी और लोग परवाह नहीं करते, इसलिए देवता उन्हें वध, बीमारी और राक्षसों के हमले से दंडित करेंगे। और इस प्रकार लोगों में भगवान का भय आने के कारण वे उनकी बातों का पालन करते हैं। इन ब्राह्मणों को मुश्किल से साहित्य का ज्ञान है, लेकिन वे चालाक और द्वेष हैं। जो ब्राह्मण लोग हैं वे उनको उजागर करने के लिए मेरे साथ बहुत ही आक्रोश करते हैं, और जब भी वे अकेले में मुझसे बात करते हैं तो वे स्वीकार करते हैं कि उनके पास मूर्तियों के अलावा कोई अन्य विरासत नहीं है। उनके झूठ के द्वारा वे लोगों से उनका समर्थन प्राप्त करते हैं। वे कहता हैं कि मैं गरीब प्राणी जैसा मैं हूँ उन सभी से अधिक जानता हूँ, तो वे अक्सर मुझे एक नागरिक संदेश और उपहार भेजते हैं, और जब मैं उन सभी को फिर से वापस भेजता हूँ तो वे एक बड़ी शिकायत करते हैं। उनके बुरे कामों के लिए वे मुझे रिश्वत देने का भी उद्देश्य रखते हैं, इसलिए वे घोषणा करते हैं कि वे आश्वस्त हैं कि केवल एक ही ईश्वर है और वे मेरे लिए उसे प्रार्थना करेंगे, और मैं एहसान वापस करने के लिए जो कुछ भी मुझ पर होता है उसका उत्तर उन अज्ञानी लोगों को देता हूँ जिनके अंधविश्वास ने उन्हें उनका दास बना लिया है, और उनकी धोखे और झूठी चालें खोलता हूँ। और इस बात ने कई लोगों को झूठे देवताओं की पूजा छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। प्रिय दर्शकों, अब तक आप समझ गए होंगे कि ये सरस्वत ब्राह्मण सेंट फ्रांसिस जेवियर के चरित्र को खराब करने की कोशिश क्यों करते हैं। ये सरस्वत ब्राह्मण स्थानीय गोवन नहीं है। जब गोवा की बात आती है तो शेफाली वैद्य ने खुद इसकी कहानी सुनाई है कि कैसे वे गोवा में बसने वालों में से एक हैं। वे सरस्वत ब्राह्मण कहे जाने वाले समुदाय के हैं। वे सरस्वती नदी के पास रहते हैं, और जब ये सूख गया तो वे गोवा चले गए थे। लेकिन क्या वे गोवा में पहले से बसे थे? नहीं। गोवा के आदिवासी या स्वदेशी लोग ये हैं: कुनबी, गौड़ी, खारबी, पारियां और अन्य जिन्हें चमार, मेहर आदि कहा जाता है। मराठा क्षेत्र के कुछ क्षत्रिय वर्ग के लोग भी थे जो गोवा में बस गए थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर ने गोवा के आदिवासी या स्वदेशी लोगों पर जाति व्यवस्था के नाम पर सरस्वत ब्राह्मणों द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
शेफाली वैद और द गोवा इंक्विजिशन के ऑथर A.K. प्रयालकर एक बॉम्बे आधारित गोवा सरस्वत ब्राह्मण है। प्रिय दर्शकों, A.K. प्रयालकर, शेफाली वैद और कुछ समर्थक पुर्तगाली शासनकाल से पहले गोवा की एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं जहां सब कुछ अच्छा और शांतिपूर्ण था, और यह कि पुर्तगालियों ने आकर सब कुछ नष्ट कर दिया। क्या ऐसा था? ऐसा लगता है कि सरस्वत ब्राह्मणों और क्षत्रियों और अन्य उच्च जाति के लोगों के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसा लगता है कि गोवा के चारों ओर इस तरह के मिथकों का सचेतन निर्माण सरस्वत ब्राह्मणों द्वारा प्रतिशोध का परिणाम है, जिनके अधिकार और श्रेष्ठता को चुनौती दी गई थी जब निचली जाति के लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे और पुर्तगालियों ने जातीय व्यवस्था को चुनौती दी थी। हमने शेफाली वैद या RSS या VHP या अन्य हिंदुत्व प्रचारकों जैसे लोगों को कभी नहीं सुना या देखा है कि वे जाति व्यवस्था या कुछ हिंदुओं के अन्याय के खिलाफ बात करने वाले ईसाइयों को चुनौती दें या उनसे नफरत करें। अब हम शेफाली वैद, एक सरस्वत ब्राह्मण, नीरज अत्री, संगम YouTube चैनल और जयपुर डायलॉग्स YouTube चैनल से उनके पक्षपाती साक्ष्य को एक बार फिर से सत्यापित करने और उनके दावे को साबित करने के लिए फिर से सत्यापन योग्य तथ्यों को सामने लाने का अनुरोध करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये हेट मॉन्गर्स नफरत और झूठ को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है वो है सच, एक पूर्ण सच। कुछ देर सोचिए, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है, आप तय करें कि आपको क्या चुनना है। तो बहुत जल्द इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।